addictions? Positive addictions would include the creative arts, such as drawing, writing, painting. All of these qualify as positive addictions. Music is positive addictions. People who are interested in dancing, that's a positive addiction. Playing a game with family members has the beneficial effect of both the social interaction as well as the fun of the game. Some people like to do gardening, some people like to do cooking. All of these qualify as positive addictions and have a significant benefit in reducing the stress. Then social connection is very important. Participating in All India Radio's special discussion program on COVID-19, Dr. Raman Gangakhedkar, former head scientist of epidemiology and communicable diseases at ICMR, explained how does herd immunity work. हर्ड इम्यूनिटी में 100 में से 60 लोगों को अगर बीमारी पहले हो चुकी है तो हम ये समझते हैं कि वो जगह पे नए सिरे से दूसरे को बीमारी लगने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन होती है एक इंसान दूसरे से मिले उसमें निगेटिव इंसान के साथ में मिलने का चांस उतना ही कम हो जाता है जब 60% लोग जो होते हैं उनको बीमारी लगती है. इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. The News Services Division of All India Radio, in its bilingual live phone-in program, will bring you a special discussion program on COVID-19 today. Listeners can ask questions to the experts on toll-free telephone number 1800-115767. You can also ask questions on telephone number 011-2331-4444 and post queries on our Twitter handle at AIR News Alerts by hashtag AskAIR. This can be heard tonight on FM Gold Channel and additional frequencies from 9:30 p.m. onwards. Lightning and other rain-related incidents have claimed 31 lives in Bihar, 11 others injured in the state during the past 24 hours. Most of the victims were those working in agricultural fields. The Chief Minister has announced an ex gratia of 4 lakh rupees each to the next of the kin of the deceased. He has also ordered free treatment to the injured. Weathermen have cautioned people to remain alert as more rain and lightning are expected during the next 24 hours in different parts of the state. In Uttar Pradesh, at least 23 people were killed and several others injured in lightning and other rain-related incidents during the past 24 hours. The highest number, that is 9 people, were killed in Prayagraj district, followed by 6 in Mirzapur and 5 in Bhadoi district. Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief over the loss of life. He asked district magistrates to immediately disburse the relief amount of 4 lakh rupees each to the families of the deceased. Now let's look at the weather updates for today. Heavy rain and high-velocity winds slashed the national capital last night, bringing the mercury down by several notches this morning. Met Office said 33.6 millimeter rainfall was recorded till 5:30 this morning. More rain is expected over the next 3 to 4 days. Mumbai continued to receive heavy rains on the second consecutive day yesterday, with the IMD warning of very heavy to extremely heavy rainfall at isolated places in the area. In Gilgit, the minimum temperature was recorded at 17 degrees Celsius, while the maximum will be around 34 degrees Celsius, and the sky will be generally cloudy with moderate rain. Muzaffarabad may see a thunderstorm with rain. And now in नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम ऐप के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का किया शुभारंभ। प्रौद्योगिकी समुदाय से विश्व स्तरीय ऐप विकसित करने को कहा। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होंगी, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में किया जाएगा प्रमोट। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 15,640। कल एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 480 मामले आए सामने। और आज गुरु पूर्णिमा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय एप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरूआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय एप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदायों से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। ये चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी, मौजूदा एप्लीकेशंस का संवर्धन और नए एप्लीकेशंस का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो देश के लोगों की सेवा करने का काम करता है। श्री मोदी ने पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है और बाकी सब कुछ इसके बाद होता है। कोविड महामारी के दौरान पार्टी कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके द्वारा राष्ट्र स्तर पर किया गया व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्य संकट के बीच देश में सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता ये जानते थे कि वे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन वे लोग महामारी के दौरान पूरे समर्पण के साथ जुटे रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों की और राष्ट्र की सेवा करते हुए अपनी जान भी गंवा दी। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से राहत कार्यों को मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए डिजिटल पुस्तिका तैयार करने का अनुरोध किया। प्रदेश में इस साल सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों में शामिल सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगले कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय लिया है। अभी भी हालात ठीक नहीं है। कोरोना का जो स्थिति है वर्तमान, उसको मद्देनजर रखते हुए तथा उसके साथ साथ हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों की तरफ से ये लगातार ये मांग की जा रही थी कि छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के इन परिस्थितियों में प्रमोट किया जाए, क्योंकि अभी भी परिवहन की पूरी सुविधाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है और विद्यार्थियों को शहरों में या बड़े स्थानों पर परीक्षाओं के लिए जाने के लिए जो रहने की व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं होने की वजह से और भारत सरकार की गाइडलाइन अनलॉक 2 के अनुसार छात्रावास आदि खोलने की छूट नहीं दिए जाने की वजह से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने छात्रों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने के साथ ही इनके ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 19,532 संक्रमितों में से 15,640 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 15,325 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। कल राज्य में एक ही दिन में अब तक सबसे ज्यादा 480 मामले सामने आए। इनमें सर्वाधिक अलवर में 54 रोगी मिले हैं। अलवर के बाद कल बीकानेर में सबसे ज्यादा 46 मामले मिले। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत कोरोना महामारी के प्रति लोगों को सचेत किया जा रहा है। अनलॉक 2 के चलते बीकानेर में आर्थिक गतिविधियों ने जहां अपनी रफ्तार तो पकड़ी है, वहीं जिले के कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के ग्राफ की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। कल आई जांच रिपोर्ट के बाद 46 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। हालांकि बीकानेर में कोविड-19 के बढ़ने का मुख्य कारण व्यक्ति से परिवार से एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद इसका प्रभाव देखा गया। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 435 हो गई है। वहीं 175 मरीज इस रोग से निजात पाकर अपने अपने घर भी लौट गए हैं। उधर प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान गति पकड़ चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग करीब 32,000 सैंपलिंग के बाद और मुस्तैदी के साथ जिले के हर क्षेत्र में कैंप लगाकर सैंपलिंग संबंधी कार्य करवाने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। यही नई कैंप के माध्यम से लोगों को कोरोना के लक्षण, बचाव, भ्रांतियों के साथ साथ किन किन लक्षणों में टेस्टिंग होगी इसके लिए जागरूक भी कर रहा है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर।
कल बाड़मेर में 43, जालौर में 42, जयपुर में 40, धौलपुर में 39, भरतपुर में 30, जोधपुर में 29, नागौर में 26, पाली में 22, उदयपुर में 20, सीकर में 16, कोटा में 14, डूंगरपुर में 13, झुंझुनू में 11, सिरोही में 8, अजमेर में 7, दौसा में 4, करौली में 3, राजसमंद और टोंक में 2-2 और भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में 1-1 संक्रमित व्यक्ति मिले। वहीं अन्य राज्यों के 4 लोगों में और एक बीएसएफ के जवान में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 7 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 447 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परीक्षण किट बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने शुरू से ही प्रभावी उपाय किए। इधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि वह महामारी रोगों के उपचार के लिए तेज रफ्तार से टीका बनाने के उद्देश्य से वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप काम कर रहा है। संस्थान ने कहा कि देश में ही टीका तैयार करना जरूरी है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, गुणवत्ता, नैतिकता और सभी नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को 1 साल और बढ़ाकर अगले साल 2 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के आयोजनों के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक में ये घोषणा की। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 75वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम भी 1 और साल तक जारी रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हमें युवा पीढ़ी को सिखाना है कि वे अपने अध्यापकों का सम्मान करें। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उदयपुर और जोधपुर संभाग में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की है, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। भारी बारिश के प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के निचले इलाकों में पानी भरने और बरसाती नदियों के जलस्तर में वृद्धि का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग ने राज्य में 6 और 7 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर आंधी, तूफान और बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की है। टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा टिड्डी नियंत्रण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश में हवाई छिड़काव की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जैसलमेर में हेलीकॉप्टर द्वारा छिड़काव किया गया। इस कार्य में संगठन के 48 वाहन, 61 ट्रैक्टर माउंटेड छिड़काव यंत्र, 3 फायर ब्रिगेड और 13 ड्रोन तथा 1 हेलीकॉप्टर द्वारा छिड़काव किया गया। इसके अलावा टिड्डी चेतावनी संगठन के अधीनस्थ कार्यालयों ने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और दौसा के कई क्षेत्रों में भी नियंत्रण कार्य किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम ऐप के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। प्रौद्योगिकी समुदाय से विश्व स्तरीय ऐप विकसित करने को कहा है। प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होंगी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या राज्य में बढ़कर 15,640 हो गई है। कल एक ही दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 480 मामले सामने आए हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।